नेट के इशू से 66 क्राउड ही था. Why like that? I don't understand. Why you don't people join on time? अभी कल से मैं किसी के लिए भी वेट नहीं करूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू वेट. टुडे आई वेटेड. आई वाज जस्ट सीइंग कि अभी भी इट इज जस्ट 89 ओनली. हाँ, देयर आर मोर देन 115 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. Okay, so tomorrow onwards, I am not going to wait. I'm just going to stop this waiting process because I have to respect the students who come on time. So tomorrow onwards, I'm not going to wait. I will just start off. And don't think that, lectures है बाद में हम लोग attend कर सकते हैं. अगर attendance बराबर नहीं रहा, then I'm going to stop recording the lectures also. I will see to it that I'm stopping the recording of lecture. I'm recording the lectures just in case sometimes many of you may have genuine issues. तो वो genuine students के लिए मैं recording कर रही हूँ ताकि तुम लोग miss on ना करो. But please don't take this for granted. Okay? Just a minute. I'm starting with the screen sharing. Is everybody able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last time हमने binary to gray देखा. Okay? अभी next हम gray to binary देखेंगे. We will see gray to binary. So this was, I will write it down over here, whatever I was showing you. This was binary to gray. Questions were conversion of बाइनरी टू ग्रे. लिखने का एक्चुअली जरूरत नहीं है बिकॉज तुम्हें जो ये पैटर्न क्वेश्चन पूछा है मैंने 1110 टू द बेस 2 इज व्हाट इन ग्रे. दिस इज द क्वेश्चन इटसेल्फ बट स्टिल ठीक है. अभी हम ग्रे टू बाइनरी देखेंगे. उल्टा उसका. तो ग्रे टू बाइनरी में भी एक्सॉर लॉजिक ही होने वाला है यूज. तो वो किस तरह से यूज होगा दैट वी विल सी. चलो इसमें से कोई एग्जांपल पिकअप करते हैं. ये पहला वाला लेते हैं. 1110 टू द बेस 2 इज व्हाट इन ग्रे. ग्रे में क्या आया 1001. तो इसका उल्टा देखते हैं.
1001 gray is what in binary. ठीक है, ध्यान दो. So हम लिखेंगे 1001. Pay attention all of you properly. Now this first one, as it is, we go on just like the binary to gray procedure. MSB bit, this we start always from the MSB bit. MSB bit is taken as it is, just the way we take it in binary to gray. हाँ, अभी बाइनरी टू ग्रे में क्या हो रहा था, ध्यान दो. बाइनरी टू ग्रे में ये एमएसबी बिट था तुम्हारा. यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन. इधर भी वो वैसे का वैसे ही जा रहा है. एमएसबी बिट एंड द नेक्स्ट पोजीशन बिट टुवर्ड राइट यू आर एक्सोरिंग एंड देन राइटिंग डाउन द वैल्यू. यहाँ पे कैसे है, ये जो तुम्हें इधर मिलता है वैल्यू, इसका एंड ये वैल्यू का एक्सॉर होगा. 10 will give you 1. Then this 10 will give you 1. Then this 11 will give you 0. Did all of you understand what I'm trying to say? Yes, ma'am. Okay, and that's why then we get the answer as we will get the answer as 1001 gray is 1110 binary. Understood? No, see, I have taken the same thing. We got the same answer, 1110. ठीक है, वैसे ही ये नेक्स्ट वाला भी दिखाती हूँ मैं प्रूव करके. 10 और फिर बाकी सारे 6 bits are high. We will take this gray value. Second example. जस्ट अ मिनट. पता नहीं, मैं कुछ लिख रही हूँ ना तो डिले आ रहा है लिखने में. एक मैं वापस प्रेजेंट करती हूँ. Just a minute. So second one, 10 and rest all are 1. Gray is what in binary. ठीक है. सो हम ये नंबर लिख लेंगे 1 1 0 1 1 1 1 1 1. तो ये जो MSB पोजीशन है वहां से हम शुरू करेंगे. विल राइट इट डाउन एज इट इज. D
Learning day is easy if you're focused. You have to sit with a book and a pen when the lecture is going on. Whatever I'm doing, if you try to do that at the same time, you will master in DE. अभी इसका ये 1 0 का XOR करो. What is that? 1. फिर ये 1 1 का XOR करो. What is that? 0. फिर 0 1 का you do XOR. What is that? 1. Then 1 1 XOR is 0. Then 0 1 XOR is 1. Then 1 1 XOR is 0. And 0 1 XOR is 1. So therefore, the answer is 1 0 1 1 1 1 1 1. Gray is 1 1 0 1 1 1 1 1. Sorry, I wrote wrong. Zero one zero one. Fine. Understood all of you? Okay, अभी चलो. Yes, ma'am. चलो अभी मैं 2 एग्जांपल दूंगी, वो सॉल्व करना है तुम्हें. Hello, ma'am. हाँ, yes. Ma'am, actually the background noise is too much, ma'am. Too much. Okay. Hello. Now is it better? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Everybody is able to see the slide now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now you convert 1 0 1 0 0 0 0 0 in gray to binary. And fourth example will be please solve this. Do this.
You're on mute. Done, ma'am. Done, ma'am. क्या आया बोलो चलो. 11000000. 1160. 11. Yes, ma'am. 11 and 6 zeros. Very good. Then next, everybody is getting the same answer, all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then someone Yes, tell ma'am. me the fourth answer also. 101000001. 101 401. 2 zeros and 1. Is the same answer everybody is getting? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Okay, very good. Chalo, so that completes our grade 2 binary. Now, coming to next code is alphanumeric codes. So we are going to study many alphanumeric, many means few alphanumeric codes, in which the first one is ASCII code. Okay, ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. Okay, see ASCII, A S C I. That's the full form of your name as key. Okay. So American Standard Code for Information Interchange is the full form of it. Now what is this? This is a 7-bit code pattern. So basically पुराने ज़माने में, पुराने यानी कि मेरे टाइम वाले ज़माने में, when we were using computers, no laptops were there that time. Okay. So that time when newly computer was introduced and we used to use a personal computer for any official work or any household work, घर पे भी, that time the keyboard what used to be available was having ASCII code pattern. The keyboard was designed with respect to ASCII code pattern. Okay, ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It is a 7-bit code pattern. तो कितने सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे? अगर 2-बिट कोड पैटर्न है, जैसे मैंने बताया तुमको, अगर 2-बिट कोड पैटर्न है तो कितने कॉम्बिनेशंस आते हैं? 2-बिट कोड पैटर्न है तो 6. कितने आते हैं? 2-बिट कोड पैटर्न में 6. हाँ, कोई बता नहीं रहा है मुझे. Ma'am, 4. Yes, 4. देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे. इसके लिए मैंने ये स्लाइड डाला इधर से कॉपी करके. ध्यान दो, अभी ये अपना पैटर्न है 000 to 1111. ठीक है.
तो अगर 2 बिट कोड पैटर्न है तो 2 बिट्स ही आएंगे, LSB से स्टार्ट करेंगे हमेशा हम लोग। याद रखना, ये लॉजिक गेट्स में भी काम आने वाला है, इसके लिए अभी समझा रही हूं मैं। So if it is a 2-bit code pattern, the values what you will have are these: 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं। ओके, तो 2-बिट कोड पैटर्न है तो कॉम्बिनेशंस आए 4 2-बिट कोड पैटर्न के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर 3-बिट कोड पैटर्न आया तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे 3-बिट कोड पैटर्न के लिए? 6 6। 8 8, वेरी गुड, 8 आएंगे। 3-बिट, तो 3-बिट के कॉम्बिनेशंस लेंगे हम, तो ये 8 आएंगे, 0 0 से लेके 1 1 1 तक। तो ये तुम्हारा उसका पैटर्न होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1। समझा? और अगर 4-बिट कोड पैटर्न है तो क्या आएगा? 16 यस, 16। तो यानी कि ये पूरा का पूरा पैटर्न आएगा 0 0 0 से लेके लास्ट तक। तो अभी ये चीज आती कहां से है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? नाउ फॉर दैट द फॉर्मूला इज, हाँ, 2n। ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। So I will write it down over here properly. For n-bit code, 2n patterns of zeros and 1 are existing. आज ठीक है, तो वैसे ही अगर 5-बिट कोड पैटर्न आया तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 32। 2/6-बिट कोड कॉम्बिनेशन आया तो कितने पैटर्न आएंगे? 64। तो वैसे ही 2/7 है तो कितने कोड पैटर्न्स आएंगे? 128। यानी कि द कोडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 0 0 0 0 0, 7 zeros, and it will go on up to 1 1 1 1 1 1 1। तो इतने सारे वेरिएशंस आएंगे, तो ये टोटल कुल मिला के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2/7 is 128। Did you understand, all of you now? yes ma'am हाँ, अभी ये हर एक पैटर्न के लिए एक कोड वैल्यू यानी कि एक कैरेक्टर अप्लाई किया गया है, बिकॉज वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द कीबोर्ड, बिकॉज दिस वाज फर्स्ट इन्वेंटेड फॉर कीबोर्ड्स ओनली, पर्सनल कंप्यूटर्स के कीबोर्ड्स के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पे अभी देखो ये कोड पैटर्न कैसे आता है। Just see over here. So these are the bit position values. B7, B6, B5,
B4, B3, B2, B1, B0। ये तुम्हारा 7 बिट कोड पैटर्न है। ओके, तो इसमें से ये जो 3 बिट्स है B7, B6, B5 that are available in the column in this given chart, ठीक है। और B4, B3, B2, B1, मैंने B0 क्यों लिखा पता नहीं, गलती से लिख के। ये जो 4 bits remain, they form the rows in this column, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे कोड फाइंड करना है कैपिटल ए का, ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिफाई वेयर इज कैपिटल ए इन दिस चार्ट, दिस इज कैपिटल ए। तो अगर ये कैपिटल ए है तो B7, B6, B5 ये वैल्यू बनेगा, हाँ, और B4, B3, B2, B1 वो करस्पॉन्डिंग रो का वैल्यू बनेगा। डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? No, ma'am. Continue. Yes, no, ma'am. ये ए है ना, मुझे ए का वैल्यू अगर फाइंड करना है कि ए का कोड पैटर्न क्या है, तो ए को ट्रेस करो पहले। ए यहाँ पे है, दिखा क्या ए चार्ट में किधर है? आई हैव हाईलाइटेड इट, हाँ। Yes, ma'am. सो इट इज अवेलेबल इन विच कॉलम वैल्यू? दिस आर यू, यहाँ पे देखो ना, ये तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? जस्ट सी योर, ना, this is B7, B6, B5 and this is B4, B3, B2. B7, B6, B5, these are the column values. B4, B3, B2 is the row value. ठीक है, तो उसके हिसाब से for A, the value will become A corresponding column value क्या है? 1 0 0 1 0 0, and what is the corresponding row value in which row it is available? 0 0 0 1 0 0 0 1. Understood all of you? अभी समझा क्या? Yes, ma'am. हाँ, अभी let's take some other alphabet. हाँ बोलो। हेलो मैम। Ma'am, हाँ बोलो। do you want to study this chart? नहीं, मैं समझा रही हूँ। और ये चार्ट स्टडी वडी नहीं करना है, 1-2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए एस की क्या है, सूरज से 7 के कितने कैरेक्टर्स आते हैं उसमें टोटल अवेलेबल, क्या क्या अवेलेबल है एस की में। तो एस की में सारे कैपिटल लेटर्स अवेलेबल है, स्मॉल लेटर्स अवेलेबल है, कुछ फंक्शन कीज अवेलेबल है, पंक्चुएशन मार्क्स है, अलग अलग सिंबल्स है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। Okay, ma'am. तो कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। हाँ, लेट्स टेक दिस परसेंटेज साइन। हाँ, तो अगर ये परसेंटेज साइन है तो उसका कॉलम वैल्यू इज दिस 0 1 0 एंड रो वैल्यू इज करस्पॉन्डिंगली दिस, ठीक है। तो नाउ इफ आई राइट इट डाउन, तो परसेंटेज का कॉलम वैल्यू है 0 1 0 एंड द रो वैल्यू इज 0 1 0 1। वैसे ही अगर मान लो मुझे मुझे अगर डिलीट का की चेक करना है, डिलीट का कोड पैटर्न क्या है, जैसे डिलीट अवेलेबल होता है, तो उसका रो वैल्यू
कॉलम वैल्यू ये है 1 1 1 1 एंड रो वैल्यू ये है. Did you understand now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Hello, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, but Manoj sir told us that there are total 256 characters, ma'am. हाँ वो एफसीडी का अभी आगे आ रही हूँ मैं, थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ. ठीक है, ये पुराना जमाना था ना, अभी मेरा वाला जमाना था ना, अभी तुम्हारे वाले जमाने पे आ रही हूँ. ओके ओके. ये तुम्हारा मनोज सर वाला एफसीडी कोड है. So nowadays laptops पे जो keyboards available है, okay, majorly the QWERTY keypad which is available, or the PCs what we are using right now in this generation what are available, that is FCD code pattern. We are using FCD code pattern right now. Okay, FCD stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Okay, it is basically a 8-bit code pattern. So obviously, how many possible character codes will be available in that? 2 raised to 8, which is 256 character codes. तो इसमें काफी सारे extensions आए हुए हैं. हाँ, तो यहाँ पे भी similar to the first one. अगर मुझे code value लिखना है, तो let's say here I start with B7, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0. ठीक है, जिसमें से B7, B6, B5, B4 over here in this chart are the row values, and B3, B2, B1, B0 in this corresponding chart are the column values. ठीक है, तो ना उसके हिसाब से अगर हम कोई मान लो if we are picking up any code value to write down, so let's pick up some symbol, @ select करते हैं. तो ये अगर ये @ है तो उसका column value is this correspondingly, and row value is this corresponding row. So if I happen to write down the code, it will be @ का Hmm? 1100 is the, नहीं गलती कर दिया मैंने, इधर लिखना चाहिए था 1100 कॉलम वैल्यू, and row is B7, B6, और ये आएगा 0 1 1 1. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. वैसे ही अगर इसमें मुझे कुछ और वैल्यू पिकअप करना था, Ma'am. लेट्स से, हाँ बोलो. Column value will be 0 0 1 1, right? हाँ, yes, very good, Yes, ma'am. good girl. मैं ऐसी ही बैठी हूँ, मैंने चश्मा नहीं पहना है. इसका मतलब ये है, 2 मिनट, लेट मी वेयर दिस. यस, मैम रो का भी वैल्यू चेंज कर. क्यों रे, रो का वैल्यू बराबर है 0 1 1 1.
B7 आपने B6 011 लिखा है राइट? हाँ तो 011 ही है ना। तो एक देखो कि अभी वापस अभी तो मैंने चश्मा पहन लिया 0011 ठीक है। या हाँ थैंक यू हु टोल्ड मी दिस लेट मी सी हु इज अलर्ट Ma'am, me, Glory. मी मीन्स हु मी Glory. ग्लोरी। अभी ग्लोरी मुझे तो मी बोलोगी तो कैसे समझ में आएगा। अभी रोज तुम्हारा आवाज सुनूंगी तो मैं आवाज रिकग्नाइज करूंगी ठीक है। हाँ ओके तो अभी अगर मान लो स्पेस बार का हमें कोड देखना है, दिस इज स्पेस बार ओके। सो द करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इज दिस and this is the corresponding row value. So accordingly its code will get generated. हाँ तो स्पेस बार का वैल्यू आएगा 0100 and 0000. Understood now all of you? You don't need to remember these charts at all. You just need to know them. Full form याद रखना 7-bit के हिसाब से in the ASCII code chart 128 code patterns or character codes are available. With respect to 8-bit code in the EBCDIC code chart 256 character codes are available. Is that clear to all of you? Can I move on ahead? Yes, ma'am. Okay. So that's the second alphanumeric code. Ma'am, why is this table mostly blank? हाँ ये ब्लैंक है क्योंकि ये सारे जो कॉम्बिनेशन है यानी कि 0100 हाँ और सपोज से मान लो इसके बारे में बात करते हैं ये वैल्यू इधर 0100 और 1000 ये कोड वैल्यू ऑक्यूपाई नहीं किया गया यानी कि देयर आर नो एक्सटेंशन देयर आर नो न्यू कैरेक्टर्स एडेड ओवर देयर 256 यानी कि बहुत सारे हैं तो उसमें ये सारे आ गए कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स डेसिमल मैथमेटिकल मार्क्स एंड दीज ऑल एक्स्ट्रा फंक्शन कीज ऑल्सो। तो ये जो ब्लैंक है ना इसका मतलब है कि इफ यू हैपन टू ऐड सम न्यू कोड वैल्यू you can put that over here and then correspondingly that code value will become the code of that particular symbol. तो ये अवेलेबल स्पेसेस है मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू कोड वैल्यूज है। तुम न्यू कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो या न्यू फंक्शन कीज ऐड कर सकते हो। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ बोलो। ma'am, in this we have inserted that all codes, ma'am. But how are emojis then recognized, ma'am? कौन से इमोजेस? अभी तो व्हाट्सएप का इमोजेस वगैरह बोल रहा है ये जो इंस्टाग्राम पे जब आते हैं वो। Yes, ma'am. हाँ तो उसके लिए अलग अलग वो इमोजेस तो इसकी तरह हो गया ना कोड्स की तरह ही हो गया तो उनका और ज्यादा एक्सटेंशन हो गया है एंड सबग्रेडेशन हो गया है आगे जाके। Means extra codes have been generated for all those emojis or the graphics what you add on in the messages. With graphical interface. Okay, because it is not a text, no, it is a graphical thing shown on the screen. That's why. Okay, ma'am. Next alphanumeric code which we are going to learn is Hollerith code. हाँ ये बहुत मीन्स मेरे जमाने के पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था काफी पहले that is 1928. So alphanumeric code is the Hollerith code which is also called as a punch card code, the third alphanumeric code. Okay, punch card code. ये अभी भी कुछ जगह पे यूज होते हैं बट ज्यादा करके ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स में या कुछ मैसेज ट्रांसफॉर्म करने के लिए या फिर कुछ मैसेज कोड ट्रांसफर करने के लिए यूज हुए। ओके so basically it was introduced in 1928. It was invented for recording of data on medium that could then be read by a machine, developing punched card processing technology, data processing technology. The tabulating machine read and summarized data stored on the punch card and were used for government and commercial data processing. ठीक है, जैसे कोई
प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन लिखना है तो वो पंच कार्ड की, जैसे कि अभी बार कोड में लिखा जाता है, वैसे ही उसी जमाने में वो पंच कार्ड में लिखा जाता था। या फिर कोई गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन अगर सेंड करना है, सेव्ड है, कोई फाइल नेम है, तो वो पंच कार्ड के हिसाब से सेव होता था। दिस वॉज एन IBM कार्ड। अभी जो IBM कंप्यूटर्स है वही कंपनी का, दिस वॉज एन IBM कार्ड फॉर्मेट introduced by the IBM company in 1928. It has rectangular holes which will have 80 columns. तो ये जो टोटल कुल मिला के है, if you see 1 2 3 4, look at the laser pointer, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे करके लास्ट वाला इधर है 80, ठीक है। एंड इट इज हैविंग 12 रोज। 12 रोज देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट वाला 10 और पहले के 2 और 2 एक्स्ट्रा रोज, तो उसके हिसाब से 12। हाँ, एंड द कार्ड साइज वाज अप्रोक्सीमेटली 7 3/8 to 3/4 inches. That is 87 millimeters approximately in width to 82.55 length, sorry, 82.55 millimeters in height. ओके, तो इसमें से तुम कोई भी वैल्यूज पिकअप करके नोटेशन देके तुम उसका वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो पंचिंग से, पंचिंग प्रोसेस से। मीन सपोज से इफ आई पंच दिस पर्टिकुलर वैल्यू, नहीं आगे नेक्स्ट इसमें मैंने शायद एग्जांपल लिखा है, हाँ ये देखो। सो लाइक दिस पंचेस वेर मेड एट डिफरेंट पोजीशंस। तो वो जो पंच किया है, मान लो ये वाला लेजर पॉइंटर देखो, ये वाला पंच, हाँ ये कौन से रो में किया गया है, एंड करस्पॉन्डिंग टू विच रो एंड विच कॉलम विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड, ऐसे। सो मोस्ट ऑफ द लेटर पंच कार्ड प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द कार्ड व्हाट ईच कार्ड कंटेन। तो ये जो 80 कॉलम्स और 12 रोज थे, उसमें से हर एक कार्ड के ऊपर अलग अलग इंफॉर्मेशन होगा कि अगर कोई कमर्शियल कार्ड है तो रोज एंड कॉलम्स में प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, डेट ऑफ एक्सपायरी के बारे में वगैरह इंफॉर्मेशन रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट में किया जाएगा और पंचिंग वैल्यूज के हिसाब से होगा। अगर कोई गवर्नमेंट एप्लीकेशन में यूज हो रहा है तो whichever application it is being used, that data is extracted and put up in the rows and columns, and accordingly punching is done. So it depends upon where it is getting applied. It is not common for everything. So for these cards, you could examine the top of the card to see what was stored on the card. So top of the card पे information होता था कि क्या stored है. If an error was noticed on the card, it would be reprinted. If no data was printed at the top of the card, the human would need to know what number represented and then manually translate each column. So secret information भी store की जा सकती थी without giving any information on the top of the card. If you're familiar with the modern computers, this would be similar to know that binary 0110, 10000 and 0110 and 1000 are equal to 104 and 105, which in ASCII put together spell high. Binary इसका मतलब क्या है कि ये जो 0110 1000 ये है, ये बाइनरी वैल्यू डेसिमल में 104 है, decimal mein, if you convert it, okay, and if you convert the next binary value 0110 1001, it, if this is added, it would get converted to 105. हाँ, but अगर हम लोग ये कोड वैल्यूज ASCII में देखेंगे तो 0110 1000 का जो कोड है ASCII में, मीन्स तो कैरेक्टर सिंबलाइज करता है वो है H, एंड ये जो नेक्स्ट कोड वैल्यू है वो सिंबलाइज करता है वो है I, सो इट स्टैंड्स फॉर HI। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कोड वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, उसके हिसाब से मैसेजेस फॉर्मेट किए जा सकते हैं। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अंडरस्टूड? Yes, ma'am.
ओके, इसमें सब में टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए. नेक्स्ट इज मॉर्स कोड, टेली टाइपराइटर कोड, एंड देन वी विल सी द हैमिंग कोड पैटर्न. तो ये मैं कल के लेक्चर में बताऊंगी तुम्हें. 2 मिनट. मैम बस ये सिर्फ रिवाइज करा देना अगले लेक्चर में. क्यों नहीं समझा मैंने बात किया वो? मैम